یہ جو واقعہ ہے نا، یہ بنو قریظہ کا، یہ قبیلہ تھا بنو قریظہ۔ مدینہ میں 3 قبائل تھے، ایک بنو نذیر تھا، ایک بنو قینقاع تھا، اور ایک یہ تھا بنو قریظہ۔ یہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کو نا میں خلاصہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس پورے قبیلے کو قتل کروا دیا تھا۔ اب جب قتل کروایا، وہ کیوں کروایا اور اس کا الزام کس کے اوپر آتا ہے اور کیا وجوہات تھی، کس طرح سے قتل کروایا گیا، یہ سارا جو واقعہ نا، یہ اسلام کی تاریخ میں یہ کہہ لیں کہ ایسا واقعہ ہے کہ جس کی وجہ سے بہت سارے مسلمان بچوں کو بھی ٹھوکریں لگیں، اور اسکولوں میں کالجوں میں صحیح طریقے سے یہ واقعہ بیان کیا نہیں جاتا۔ اور جو غیر احمدی ہیں نا، میں آپ کو بتاؤں، جو غیر احمدی ہیں ان کے علماء نے اس واقعے کو اس رنگ میں پیش کیا ہے اپنی عوام کے سامنے کہ ایک اگر منصف مزاج کوئی بھی انسان ہو کسی بھی معاشرے تو وہ بہرحال یہ کہ اس واقعے کی وجہ سے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قصوروار ٹھہرائے گا، یہ میں آپ کو صحیح بتاؤں۔ اور لیکن جو جماعت کا اس کے اوپر مطمئن نظر ہے، اور جو بالکل ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ جماعت کو خدا نخواستہ اس کو فیبریکیٹ کرتی ہے، اس کو مطلب امبرائڈر کر کے دنیا کے سامنے پیش کرتی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جماعت تاریخی حوالوں سے ثابت کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس واقعے کے اندر کوئی بھی حضور کا قصور نہیں ہے، کوئی بھی الزام حضور کے اوپر نہیں آتا، بلکہ حضور کی ذات اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے الحمدللہ بڑی پاک اور صاف نفیس طریقے سے اس واقعے سے نکلتی ہے۔ ہوا یہ کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ جب 5 ہجری میں جنگ احزاب ہوئی، ٹھیک ہے، جس کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں، 5 ہجری میں ہوئی، اس سے پہلے مسلمانوں کا معاہدہ تھا یہودیوں کے ساتھ اور عرب کے دیگر قبائل کے ساتھ کہ اگر مدینہ کے اوپر باہر سے فوجیں حملہ آور ہوں گی تو سارے مل کر حملہ کریں گے۔ یہ معاہدہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں کا ان یہودیوں کے ساتھ۔ اس قبیلے کے ساتھ بھی معاہدہ تھا، بنو قریظہ کے ساتھ۔ تو جب مکہ والے آئے ہیں غزوہ خندق کی دفعہ، جب وہ آئے ہیں 5 ہجری میں مکہ والے، تو انہوں نے ان کے ساتھ مل کر، پہلے یہ ہے کہ ان کو خبریں دی، اس کے بعد پھر ان کے ساتھ مل کر انہوں نے حملہ کیا ہے مسلمانوں کے اوپر، اور پوری سازش میں پورے، یعنی کہ یہ ملے ہوئے، مطلب معاہدہ مسلمانوں سے ہے لیکن سارا ساز باز ان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال جب وہ جنگ ختم ہو گئی، اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو معاہدہ شکنی کی سزا دی جائے گی یہودیوں کو۔ اور یہ پہلی دفعہ نہیں تھا جو انہوں نے معاہدہ شکنی کی، انہوں نے کئی دفعہ معاہدہ شکنی کی، عہد شکنی کی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو پھر اب سزا دی جائے گی اس عہد شکنی کی۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو قلعہ تھا جس کے اندر یہ رہائش پذیر تھے، اس قلعے کا، جو بنو قریظہ کا قلعہ تھا، اس کا محاصرہ کیا۔ یہ محاصرہ جو تھا نا، یہ 25 دن تک جاری رہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت علی کو بھیجا کہ آپ جاؤ اور جا کر ان سے پوچھو کہ آپ نے عہد شکنی کیوں کی ہے اور کیا وجہ بنی کہ آپ مکہ والوں کے ساتھ مل گئے۔ تو حضرت علی گئے، تو حضرت علی کو انہوں نے مطلب بڑے بدتمیزی کے ساتھ پیش آ کرنا، حضرت علی کو انہوں نے وہاں سے انہوں نے کہا کہ آپ جاؤ یہاں سے، حضرت علی کو بھیج دیا انہوں نے وہاں سے۔ اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے وہاں پر، اور جب تشریف لے گئے تو پھر حضور نے وہاں پر جا کر ان سے جو بات چیت کی، تو حضور کو بھی انہوں نے صحیح طریقے سے انٹرٹین نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو اینڈ کے اندر نا پھر جو فیصلہ ہوا وہ یہ تھا کہ ان کو سزا دی جائے گی، اور یہ نکل کر نہیں آتے تھے، ان کا کوئی بھی بندہ قلعے میں سے باہر نکل کر نہیں آتا، کوئی بات چیت کرنے والا، کوئی ان کا کوئی لیڈر، کوئی سامنے نہیں آتا۔ تو فیصلہ پھر یہ ہوا کہ ان کو سزا دی جائے گی، تو ان کو پھر آخری الٹیمیٹم دیا گیا کہ یا تو آپ ہم سے بات کرو، جو آپ نے عہد شکنی کی ہے اس کی آپ وجہ بیان کرو، یا تو پھر آپ سب کو مار دیا جائے گا۔ تو انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی یہ تو محمد کہتے تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ نہیں کروائیں گے، جو بھی فیصلہ ہوگا نا وہ سعد بن معاذ کریں گے۔
साद बिन मुआज आपको पता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी थे, और वो इनके कबीले ये जो बनु कुरैज़ा थे ये समझते थे वो हमारे दोस्त हैं, हमारे करीब हैं वो। तो इन्होंने ये मतलब फैसला किया कि हम साद बिन मुआज के जरिए फैसला करवाएंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए फैसला नहीं करवाएंगे, जो भी इन्होंने ऐश शिकनी की या जो भी मामला खराब हुए। तो साद बिन मुआज ने इनसे पहले अहद लिया कि मैं जो भी फैसला करूंगा क्या आप उसके ऊपर मतलब आमन्ना व सदकना कहोगे, कोई उसमें कोई बाद में कोई मसला तो नहीं पैदा करोगे। इन्होंने कहा हाँ जी हम बिल्कुल जो भी आप फैसला करेंगे हम उसको मानेंगे। तो इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैसला लेकर हजरत साद बिन मुआज से करवाया। अब इन्होंने खुद ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को बीच में से निकाल दिया और हजूर फैसले में शामिल नहीं थे। इन्होंने खुद कहा इनका इख्तियार था, हालांकि ऐद शिकनी इन्होंने की हुई थी, इनकी सजा तो कत्ल बनती थी, लेकिन फिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे मतलब नेगोशिएशन करना चाहते थे, इनसे बातचीत करना चाहते थे। इन्होंने कहा नहीं हम आपसे बात नहीं करेंगे, हम साद बिन मुआज से करेंगे। और इनको ये लगता था कि साद बिन मुआज से हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं तो वो हमारे हक में कोई ऐसा फैसला करेंगे जो नरमी वाला फैसला होगा। तो हजरत साद बिन मुआज ने पहले इनसे अहद लिया कि मैं जो भी फैसला करूंगा फिर आपको मानना पड़ेगा। इन्होंने कहा ठीक है हम जी मानेंगे। उन्होंने फिर इनकी बाइबल खोल के सामने रख दी हजरत साद बिन मुआज ने। इनकी बाइबल में ये लिखा हुआ था कि जो भी ऐद शिकनी करे, मुआहदे की खिलाफ वर्जी करे, तू उसको फाटक पर ले जा और उसको कत्ल कर दे। अब जब फैसला वो सामने आया जो कि इन्हीं की शरीयत के मुताबिक था और ये उसके ऊपर पहले अपना फैसला भी दे चुके थे कि हाँ जी हम मानेंगे, मतलब ये अहद दे चुके थे हम मानेंगे जो भी साद बिन मुआज फैसला करेंगे। तो साद बिन मुआज ने इनकी बाइबल खोल के रख दी सामने। उसमें लिखा हुआ था कि जो भी ऐश शिकनी करे उसको फाटक पर ले जाओ और उसको कत्ल कर दो। अब जब फैसला हो गया इनके तकरीबन 600 से लेकर 900 के करीब लोग ना इनके मारे गए। जो इख्तियार इन्होंने किया, यानी जो इनका इख्तियार था, जो फैसला जिससे इन्होंने करवाया, ये अपनी ही तलवार के जरिए मारे गए। जमात का ये मौक़िफ़ है इसके ऊपर कि अगर तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैसला करवा लेते हैं तो चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन थे तो हुजूर कभी भी इनके कत्ल का फैसला ना देते, बल्कि शायद या तो इनको माफ कर दिया जाता या कोई छोटी मोटी सजा देकर इनको छोड़ दिया जाता। लेकिन चूंकि इन्होंने अपनी पसंद से हजरत साद बिन मुआज से फैसला करवाया और उन्होंने भी कोई इस्लामी शरीयत के मुताबिक फैसला नहीं किया, उन्होंने इनकी ही शरीयत के मुताबिक फैसला किया, यहूदी शरीयत के मुताबिक। अब इसके ऊपर आपने अभी ये वाकया सुना है, बिल्कुल मिनवन ऐसे ही वाकया है, मिनवन बिल्कुल ऐसे ही वाकया है। ये तबकात साद बिन वो जो है दूसरी किताब तारीख तबरी के अंदर भी, तबकात इब्न साद के अंदर भी, तारीख इब्न हिशाम के अंदर भी, इसके अलावा अहदीस के अंदर भी ये बिल्कुल मिनवन ऐसे ही बयान हुआ। और ये इतना मशहूर और मारूफ वाकया है कि मतलब बच्चे को ही तकरीबन याद है, जिसने एक दफा ये वाकया पढ़ लिया उसको भूलता नहीं है। अब इसके अंदर कोई ये बता दे कि इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहाँ कसूर है, या जो ये 600 से लेकर 900 ये कत्ल हुए हैं इसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहाँ इसके ऊपर इल्जाम आता है कि हजूर ने कत्ल करवाए। अहद शिकनी इन्होंने की, मुआहदे की खिलाफ वर्जी इन्होंने की, दुश्मनों के साथ मिलकर मुसलमानों पर इन्होंने हमला किया, और फिर जब कले का मुहासरा हुआ तो अपना कोई बंदा बाहर नहीं भेजा। 25 दिन तक मुसलमान इंतजार करते रहे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, हजूर ने आखिर दम तक कोशिश की है कि इनसे बातचीत हो और इनसे वजह ली जाए कि इन्होंने मुआहदे की खिलाफ वर्जी क्यों की, लेकिन इनका कोई बंदा बाहर नहीं आया। और जब आया है बाहर, उसने आकर कहा है कि जनाब हम मोहम्मद साहब से बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे साद बिन मुआज से। और साद बिन मुआज ने भी अपना कोई मन चाहा फैसला नहीं किया, बल्कि जो इनकी शरीयत कहती थी उसके मुताबिक उन्होंने फैसला किया। तो सारा इल्जाम इनके ऊपर आता है। इसके बावजूद आजकल का जो मगरिब का जो कह लें कि मुस्तशरिक है या ओरिएंटलिस्ट है या पादरी है या तो कोई तारीखदान है, वो सारा इल्जाम इस्लाम के ऊपर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर डालता है कि देखो जी ऐसा जालिम और जाबिर दीन है कि बेगुनाह 700 या 1000 के करीब यहूदियों को
तहते करवा दिया। हालांकि मुसलमानों का या इस्लाम का इसमें क्या कसूर है भाई? तारीख आप पढ़ो तो सारा कसूर ही यहूद का निकलता है, बल्कि उनके साथ तो नरमी का मामला किया जाता। अगर वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फैसल बना लेते तो हुजूर यकीनन उनको छोड़ देते, क्योंकि हुजूर की जो रहमत थी, जो रहम था, वो सब के ऊपर गालिब था, तो हुजूर उनको छोड़ देते। लेकिन उन्होंने खुद चाहा, उन्होंने अपनी तकदीर अपने हाथों से खुद लिखी, अपनी तबाही अपने हाथों से खुद लिखी उन्होंने, और फिर जो उनकी शरीयत कहती थी उस शरीयत के मुताबिक वो फैसला किया गया। अब मुसलमान पता क्या, अब ये तो हो गया जमात का मौक़िफ़, ये जो मैंने आपको बताया ना, जो इसके अंदर जो मैंने आपको पिलर्स बताए हैं कि फैसला उन्होंने खुद चाहा, हज़रत साद बिन मुआज़ को मुकर्रर किया फैसल के तौर पे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैसले का इख्तियार ले लिया। हालांकि हुजूर जो थे वो मदीना के वाली थे, हुजूर चाहते तो हुजूर फैसला कर देते, लेकिन हुजूर ने फिर भी नरमी की। फिर जो उनकी शरीयत, ये सारे मैंने आपको पिलर्स बता दिए हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ गैर अहमदियों का इसके ऊपर क्या नुक्ता नज़र है। गैर अहमदी ये कहते हैं, और मैंने बड़े बड़े इनके वो जो मुतहम्मिल मिजाज जो गैर अहमदी से गामदी साहब टाइप के, उनको भी मैंने सुना, वो पता है क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी जब दीन आ गया ना, दीन, तो फिर अल्लाह का रसूल पाबंद होता है कि वो कुफार को पहले एक दो दफा मौका दे, अगर वो ना माने तो फिर उनको या तो मुल्क से निकाल दे या उनको मार दे। ये गामदी कहता है। हालांकि गामदी साहब इतना मशहूर है कि जी बड़ा मुतहम्मिल मिजाज आदमी है, प्यार मोहब्बत की तालीम देता है, लेकिन ये उसका ख्याल है इस वाक़े के ऊपर। तो गामदी ये कहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद को कई दफ़ा पैगाम दिया इस्लाम का, और जब वो ना माने तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अब मैं मजबूर हूँ और मैं तुम्हारा मुआसरा करता हूँ कले का, तो अब या तो तुम इस्लाम कबूल करो या तो फिर अपनी गर्दन कटवाओ। ये गामदी कहता है। और इससे कहीं ज्यादा सख्त जो गैर अहमदी है वो कहते हैं, दूसरे जो गैर अहमदी मौलवी, वो ये कहते हैं भाई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा टाइम दिया यहूदियों, बार बार मुसलमानों को वो तंग करते थे, मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाते थे, इसलिए नबी पाक ने फिर फैसला किया कि अगर अमन से रहना है तो फिर यहूदियों को ख़त्म कर दो। इसलिए नबी पाक ने तकरीबन 1000 के करीब यहूदी ज़िबा करवा दिए। ये गैर अहमदी मुसलमानों के उलमा का ख्याल है, और जमात का मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब इसके अंदर जो जमात का है वो बिल्कुल आइडियल मौक़िफ़ है, और उससे इस्लाम के ऊपर कोई ज़द नहीं पड़ती, नबी पाक के ऊपर कोई ज़द नहीं पड़ती। लेकिन जो गैर अहमदी उलमा का जो मौक़िफ़ है उससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर भी ज़द पड़ती है, इस्लाम की तालीमात पर भी पड़ती है, और इस्लाम एक जालिम और जाबिर मज़हब के तौर पे नज़र आता है कि दावत देता है, अगर कोई दावत कबूल ना करे तो अगला ऑप्शन होता है जनाब उसकी गर्दन। तो इस वाक़े से ना इस्लाम बदनाम होता है। इनके कॉलेजों में, जो गैर अहमदियों के कॉलेजों में या यूनिवर्सिटीज़ में या मदारिस में जब ये वाक़या बताया जाता है ना, तो जो बच्चे बच्चियाँ फिर लड़के जो यंगस्टर हैं वो बेचारे, उनका ज़मीर तो अंदर से कह रहा होता है, अब ऊपर से वो जितना मर्जी वो कहें कि हाँ जी वो तो मतलब इस्लाम ने ठीक है पैगाम दिया, लेकिन अंदर से बंदा मुतमईन नहीं होता। जुल्म है ना, ज़्यादती है। क्या अल्लाह ने काफिरों को हक नहीं दिया है कि वो अपना मजहब प्रैक्टिस करें? तो फिर खुदा ने काफिर बनाए क्यों हैं? अगर अल्लाह ताला चाहता तो सारे मुसलमान ही पैदा करता। तो ये तो दीन ही नहीं है ना कि आप किसी को पैगाम दो, अगर वो नहीं मानता तो फिर उसकी आप गर्दन काट दो। ये तो कोई दीन ही कोई नहीं है, ना इस्लाम इसको बैकअप करता है। और फिर जब यही बच्चे जब ये बाहर मुल्कों में जाते हैं और वहां पर ये एतराज सुनते हैं तो इसका जवाब नहीं दे पाते। इसलिए जो जमात का मौक़िफ़ है ना, वही असल मौक़िफ़ है इसके ऊपर कि वो जो फैसला हुआ बनु कुरैज़ा का, वो उन्होंने खुद चाहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाल दिया बीच में से, ठीक है। और जो फैसला हुआ वो उनकी शरीयत के मुताबिक हुआ। इसमें ना तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई कसूर है, ना इस्लाम का कसूर है, ना मुसलमानों का कसूर है, ना इवन ये कि हज़रत साद बिन मुआज़ का कसूर है। जो कसूर है वो यहूद का और यहूदी शरीयत का कसूर है। सारा इल्ज़ाम यहूद पर और यहूदी शरीयत पर जाएगा। बहुत सारे मुसलमानों के बच्चे ये वाक़या पढ़ के जो बाहर आए, कॉलेजों में यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने आए, वो देरी हो गए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं एक इंडियन लड़का, जो कि इंडियन मुसलमान हैदराबाद का, लेकिन वो यूएई में, दुबई में रह रहे थे वो लोग, तो वो मुझे मिला, उसने मुझे बताया कि कहता मैं एग्नोस्टिक हो चुका हूँ। मैंने उससे पूछा, उसने मुझे यही वाक़या बताया। कहता यार वो जो बनु कुरैज़ा का वाक़या हुआ था ना, पूरा का पूरा कबीला आपके नबी ने ज़िबा करवा दिया था, तो ये कौन सा दीन है, कौन सी इंसानियत है, कौन सा मज़हब है जो कि
इतना अदम बर्दाश्त वाला मजहब हो। ये उसने मुझे बताया, कहता मैं अब इस्लाम से निकल चुका हूँ, सीधी बात है, मैं किसी इस्लाम को फॉलो नहीं करता, ना मैं मोहम्मद साहब को सच्चा मानता हूँ, हाँ बस खुदा की जात में मेरा यकीन है, बाकी सारे मजहब झूठे। मतलब कहने का ये है कि इस वाक़े ने ना बड़ा नुकसान पहुंचाया मुसलमानों को, मुसलमान बच्चों को। इसलिए हमें वो मौक़िफ़ लेना चाहिए जो जमात अहमदिया का मौक़िफ़ है, और उसी मौक़िफ़ से ना हम इस्लाम का दिफा कर पाएंगे। बाकी अगर मौलवियों का मौक़िफ़ अपनाएंगे ना तो अपने बच्चों को भी धैर्य करके बैठ देंगे हम लोग। जो जमात वाला मौक़िफ़ है ना, उसी से वही असल और वो हकीकत भी, ये नहीं कि वो जमात ने कोई तराशा है वो मौक़िफ़, बल्कि वो है ही वही मौक़िफ़ है, असल जो वाक़ई की हकीकत है।